At the back of this big tragedy in Bihar, viewers, not very long ago, right in the middle of election season, was the huge tragedy in Gujarat, where again there is a ban on alcohol. Is prohibition really cannot be implemented when it comes down to ground level situations? I want to cut across to our panelists this evening. Sunil Vatsayan, Chairman, NADA India Foundation. Abhishek Jha, spokesperson, JDU. He'll be joining us in a very short while. Pramod Chandravan is the Vice President of the BJP Bihar unit. I want to cut across to Mr. Vatsayan first. Sunil Vatsayan, the fact is the tragedy which we are seeing at the scale in Bihar, 39 dead. On the other hand, not just, far off, just a few months ago in Gujarat, we saw that massive, huge tragedy in the middle of elections. Putting the spotlight on only one question, is prohibition actually effective? The very question of the prohibition as such is effective in absence of any national alcohol policy. Because alcohol policy, there is no alcohol policy as such. So it means it needs a more regulation rather than just cutting it sort of a size in a form of a prohibition. Prohibition, when you are saying that you are limiting the availability of the alcohol, so is you are criminalizing the alcohol user. Alcohol use is a disease which should be decriminalized. It should not be criminalized at all. I think that is the best practice worldwide. But Mr. Vatsayan, with what we've seen in the history of this country, every time states have looked at prohibition, they've failed miserably. You've generated an entire illegal hooch industry. You've lost revenue to your border states as a state. And on the other hand, people have paid the price with tragedies such as this. No, you're right. It has to be, it is the people who are, they are like, the brunt comes to the people because they have not been involved in the decision-making process. And so is when you are maintaining the prohibition in Bihar, it needs to be reviewed in the context of the availability, accessibility, and of the alcohol, because it is available illegally somehow. So this is how it needs to be taken care of. Okay, all right. Yeah. We're going to cut across to our political guests as well. Pramod Chandravan, the Bihar BJP Vice President, is with us. So the fact is, it's not just Bihar. 2 months ago, a similar tragedy unfolded in Gujarat as well. Many BJP-run states where there has been prohibition, there have been huge tragedies when you were in government with Nitish as well, in Bihar itself. What has changed? Today, how can you turn around and blame Nitish? It's been happening under your rule as well. In Gujarat, in Bihar, when you were in government with Nitish. मैडम, ऐसा है जी कि नीतीश जी सिर्फ गुजरात के शराब का जो वहां लगा है, शराब कानून बना है गुजरात के अंदर, और गुजरात में थोड़ी बहुत कोई कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको उदाहरण देते हैं, लेकिन गुजरात के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, उसको बिहार में उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है। तो नीतीश जी को तो सबसे पहले गुजरात के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है और गुजरात में सर एक बात बताइए चंद्रवंशी जी, एक बात बताइए, बिहार में अभी तक क्या आंकड़ा है? 39 डेड हैं। गुजरात में सुनिए सर, सुनिए गुजरात में जब हुज ट्रेजेडी हुई थी 2 महीने पहले, तो कितने डेड हुए थे सर? गिनती मालूम है, आंकड़े मालूम है आपको? मालूम है 42 सर, 42। बिहार से 2 ज्यादा, 3 ज्यादा। तो फिर उनको छोटा मोटा मत कहिए सर। बिहार में इससे बड़ी हुज की घटना हुई थी, तो छोटा मोटा नहीं है। देखिए वहां का वो एक अलग समस्या था, यहाँ एक अलग समस्या है। आप यहाँ पर शराब बंदी कानून लागू किए हैं और उसका सर वहां पर भी यही है, वहां पर भी कानून ही लागू किए हैं और उसका आज भी हम समर्थन करते हैं। लेकिन शराबबंदी कानून का समर्थन हम इसलिए किए थे कि बिहार के गली में, चौराहे में, गांव में, कस्बे में, चौक पर, चौराहे पर सब जगह शराब मिल रहा था। और कानून लागू होने के बाद भी वही स्थिति है कि बिहार के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, ऐसे सारे गरीब आदमी जो जिसको कहते हैं शोषित, वंचित, पीड़ित, ऐसे लोग इस शराब के जहरीले शराब से मृत्यु हो रही है।
और बिहार के अंदर एक जगह नहीं, बिहार में मैं बता रहा हूं आपको, गोपालगंज में अगस्त 2016 को जहरीले शराब से लोगों की मृत्यु हुई है। 29 जुलाई 2017 को मुंगेर में जहरीले शराब से मृत्यु हुई है। 6 फरवरी 2021 को कैमूर में जहरीले शराब से मृत्यु हुई है। सर, इनमें से 2 महीनों में तो सरकार आप ही की थी वहां पर उनके साथ। देखिए, हमारे गवर्नमेंट थी, आप ही तो थे सरकार में फरवरी में। सरकार में थे, आंकड़े तो आप गिन रहे हैं। नहीं, जो सरकार में हम लोग साथ में थे, लेकिन सरकार में साथ रहने के बाद भी इस कमी को हम लोग बार बार नीतीश जी को आगाह कर रहे थे। नालंदा में जब घटना हुई थी, मैं खुद गया था वहां नालंदा में। चंद्रवंशी जी, देखिए, ये पल्ला झाड़ना है, सरकार आपकी थी तब, आप ही की उसमें निगरानी में जो हुज ट्रेजेडी हुई वही आंकड़े आप गिन रहे हैं। गुजरात को छोटी मोटी ट्रेजेडी बता रहे हैं, वहां पर 42 लोगों की मृत्यु हुई थी सर हुज ट्रेजेडी में। वो छोटी मोटी घटना हो गई। पर चलिए, एक सेकंड बने रहिए हमारे साथ सर, बने रहिए। वो एक्सीडेंट था सर, वो एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? वो भी हुज ट्रेजेडी थी सर। नहीं, वो एक्सीडेंट था सर। इलीगल अल्कोहल था, वो भी हुज थी, अवैध शराब थी, सेम चीज थी सर। वहां पर भी पूरी पाबंदी है। यही लॉ जो इधर है वही वहां पर है। थोड़ा उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अभिषेक झा जी को लेकर लगातार घटनाएं नहीं घट रही है, यहाँ लगातार घटनाएं घट रही है। हर 2 महीने के बाद हो रहा है, हर 1 महीने के बाद हो रहा है। अभिषेक झा इज विद अस फ्रॉम द जेडीयू। झा जी, अगर कोई बोलता है कि जिन्होंने ये अवैध दारू पी है, जो दारू पिएगा वो तो मरेगा ही, ये बोला है जो बिहार के सीएम है, सही बोला है सर? मानते हैं कि सही है, जो दारू पिएगा वो मरेगा? मुझे एक छोटी सी बात बताइए, समाज सुधार का कोई भी काम हो, चाहे वो दहेज प्रथा को समाप्त करना हो, शराबबंदी को लागू करना हो, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, साथ नहीं आएंगे, तब तक क्या हो सकता है? इफ यू परचेज पॉइजन फ्रॉम द मार्केट एंड कंज्यूम इट, व्हाट विल बी द आउटकम? लाइफ और डेथ, सिंपली डेथ। वही बात नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कही है। इफ a person is consuming such poisonous alcohol, the result will be death. तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है अभिषेक झा, आप ये कह रहे हैं? जो सरकार है वो कह रही है कि चलिए यहाँ पर अल्कोहल अलाउड नहीं है, जो पूरी एक हुज इंडस्ट्री बिल्कुल खड़ी हो गई है, थ्राइव कर रही है, उसका कुछ नहीं है। पर अगर आपने शराब पी ली और आप मर गए, या आपकी गलती है? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि हम लोग अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की बात नहीं करते, न सरकार न प्रशासन। स्थानीय प्रशासन के तरफ से जो चूक हुई है उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, और आप देख रही हैं कि लगातार कार्रवाई उस पर सुनिश्चित की जा रही है। वहां के थानेदार हैं वो निलंबित हुए हैं, चौकीदार हैं वो निलंबित हुए हैं, डीएसपी स्तर या उससे भी बड़े स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो भी जांच के घेरे में एसआईटी गठित की गई है। अभिषेक झा जी, बात अब ये आ गई है कि बोला जा रहा है कि ये जो पूरी पॉलिसी, जो पूरा ये इन्होंने प्रोहिबिशन किया था, ये काम ही नहीं कर रहा है जमीन पे। रेवेन्यू लॉस है, क्योंकि जो आपकी बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पर सब जाते हैं, एक पूरी हुज इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। तो इसमें क्या शर्म है कि ये वापस ले ली जाए, मैडम, प्रोहिबिशन बंद किया जाए, क्योंकि काम तो कर रहा नहीं है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर ये लॉजिक लगता हो तो पूरे विश्व में बहुत तरह के जघन्य अपराध होते हैं, सबके लिए कानून भी बनते हैं, कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कानून टूटते हैं। हत्या के लिए कानून है, लेकिन अगर फिर भी कोई हत्या लगातार कर रहा हो तो क्या करें? हम हत्या के लिए कानून को समाप्त करें? सर, हर 2 महीने में एक चीज जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं चंद्रावंशी ने, उन्होंने सही की है, कहा है हर 2 महीने में एक हुज ट्रेजेडी होती है। तो अगर आए दिन ये कानून टूट रहे हैं तो ये कानून की जरूरत ही नहीं है सर। मैं बहुत छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अनइंटरप्टेड मौका दें। शराबबंदी एक अलग विषय है और जहरीली शराब से मौतें एक अलग विषय है। देश के विभिन्न प्रदेशों में जहां पर शराब चालू भी है, वहां भी जहरीली शराब से मौतें होती हैं। लोकसभा में एक माननीय सदस्य ने पूछा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने जवाब दिया कि पूरे देश में बीते 6 सालों में 2016 से लेकर 22 तक लगभग 6174 लोगों की मौतें हुई हैं शराबबंदी से। गुजरात में ज्यादा मौतें हुई हैं बिहार के कंपैरिजन, या अन्य जो प्रदेश है वो भी आगे है बिहार से। तो अभिषेक झा जी, आप मानते हैं कि अगर आप गुजरात का एग्जाम्पल देते हैं तो एटलीस्ट ये तो आप मान रहे हैं ना कि जहां पर पाबंदी है, जहां प्रोहिबिशन है, वहीं पर ये मौतें ज्यादा होती हैं। तो ये आंकड़े मत बताइएगा कि हर स्टेट में होती हैं। जो पूरा अगर आप आंकड़ा लें, हर स्टेट में 0.1% नहीं होगी सर, जो बिहार में होती है और जो गुजरात में होती है, तो पल्ला नहीं झाड़ सकते। पर प्रमोद चंद्रावन जी,
जी बोलिए बोलिए, झा साहब बोलिए, फिर एक सवाल चंद्रावन जी से कहना लेंगे। है कि ये गुजरात के और गुजरात उत्तर प्रदेश जहां भाजपा शासित राज्य है उसकी तुलना कर रहे हैं कि वहां भी घटनाएं घटी है, लेकिन भाजपा शासित राज्य में जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो सुन लीजिए ना, झा साहब आ रही हैं, उनको बोलने दीजिए, चंद्रावन जी को बोलने दीजिए, आई कम बैक टू करेंगे। बोलिए चंद्रावन जी, पहले तो आपने अपना जो भाजपा शासित राज्य में जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, लोगों की आकांक्षाओं की राज्य सरकार पूरी की है, उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। वहां कोई एक दुर्घटना होगी तो उसकी चर्चा करते हैं, गुजरात में ऐसे हो गया, बात तो ये है ना, आप ये मान नहीं रहे, वहां की घटना छोटी मोटी बता रहे हैं, वहां पे कह रहे हैं वहां पर पाबंदी नहीं है सर, है प्रोहिबिशन। तो ये थोड़े फैक्ट गलत हैं आपके, पर जी झा जी बोलिए, फिर ये डिबेट खत्म करनी है, बोलिए। मैं एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। अभी भाजपा के लोग कुछ समय पहले तक हमारे साथ थे, और भाजपा के वरिष्ठ नेता है सुशील कुमार मोदी जी। पहले जब भूज ट्रेजेडी इस तरह से होती थी और हम पर आरोप लगते थे, तब सुशील कुमार मोदी जी ने ट्वीट किया कि जिन राज्यों में शराबबंदी लागू नहीं है वहां अक्सर बिहार से ज्यादा बड़ी घटनाएं हैं। पश्चिम बंगाल में जल्दी शराब पीने से 167, But that's no excuse. By quoting Sushil Modi, who was your erstwhile political partner, you can't walk away from this massive tragedy that is unfolding in Bihar. And that could be the reason because of a prohibition policy that is completely ineffective on ground. And many would suggest that the chief minister of the day has too big an ego to actually back down and say he made a mistake. With that, I appreciate both of you for joining us. Thank you.